Hello, praise the Lord. I bring greetings in the sweet name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका अभिनंदन करता हूँ। In this morning, indeed again, it's joy and privilege to serve the Almighty God. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वास्तव में प्रभु ने जो सुंदर अवसर दिया है कि मैं परमेश्वर की सेवा करने पाऊँ सुबह काल में, सबका धन्यवाद करता हूँ। Today my heart is filled, or our heart is filled with the joy when I see our daughter singing song with the music. आज मेरा हृदय बहुत ही आनंदित था कि जब मेरी बेटी म्यूजिक के साथ में गाना गा रही थी। It was her first song which she has sung by, followed by the music, and I believe that she has done extremely good. और ये उसका पहला गाना था जो उसने मतलब कि म्यूजिक के साथ में गाया और मुझे अच्छा लगा। Keep our family and our kids in your prayers that we may be used by kingdom of God, for the kingdom of God. और आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि हम सब परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो जाएं। May the Lord be exalted through our life and ministry. परमेश्वर का नाम ऊंचा हो जाए हमारे कार्यों के द्वारा, हमारी सेवा के द्वारा। Last year by this time I was in Africa, Kenya. और पिछले साल इस समय में मैं अफ्रीका केन्या में था। And that was my second continent to travel for the ministry of God. वो मेरा दूसरे महाद्वीप था जहाँ पर मैं सेवा के लिए गया। And I truly enjoy the ministry which I had there for a month. और वाकई में मैंने बहुत ही उसका सेवा कार्य को बड़े आनंद उठाया वो काम करने के लिए। Since this is the lockdown season, we are not allowed to move anywhere. We are not allowed to have anything outside. So these days in the Facebook reveals the old memories I am sharing with you all. और जिस प्रकार से इस समय में हम लोग जब लॉकडाउन में सब अपने अपने घरों में हैं, हम बाहर नहीं जा सकते सुसमाचार के लिए, लेकिन जो भी मैंने पिछले साल में जो कार्य किया उन सब बातों को मैं फेसबुक के द्वारा बार बार प्रकट करता हूँ। I would like to tell you that we are not locked down, we are locked in. That means we are allowed to be in the presence of God. God is allowing things to happen in our life that we must be tuned with Him. We may have more and meaningful time with the Almighty God. हम ऐसे लॉकडाउन का मतलब कि हम बंद नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर में बंध गए हैं, उसमें समा जाएं कि हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने आप को बदल सकें। It is true that time is coming that God is going to do and to shake the nations with the word of God, where the God is going to reveal the people and there will be a great revival in the nations. और ये वास्तव में सच्चाई है कि परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा कर रहा है, दुखा रहा है, उठा रहा है कि वो संसार को, यहाँ के लोगों को हिला दे। You are the partaker, you are the carrier of God's glory, you are the carrier of God's power. In the days to come, God will export you and for the power of God and for the ministry of God. आप वो लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा को उसको प्रकट करेंगे, उसके कार्यों को प्रकट करेंगे। आने वाले समय में जब परमेश्वर अपना कार्य प्रकट करेगा उस समय आप लोग सब प्रभु के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। When I see the social media and see the many young people having more passionate and more burdenful, more desire to go for the Lord, and my heart gives me more joy to praise God, to see the new generation coming up for the Lord and winning the souls for the kingdom of God. जब मैं मीडिया में देखता हूँ कि बहुत सारे जवान लोग बाहर निकल के परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे हैं, तब मेरा हृदय बहुत ही परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए भर जाता है कि सारे जवान लोग बाहर निकल के आ रहे हैं प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए। And even before we were not knowing how many people are having the desire, but these days because of the social media, because of the word that has to be needed to reach to the people, and it has become very emergency to young people to come out and say the gospel. पहले हम लोग नहीं जानते थे कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी इससे पता चल रहा है कि लोगों को कितना परमेश्वर की आवश्यकता है, कितना इसीलिए वो जवान लोग निकल करके परमेश्वर की सेवा के लिए आ रहे हैं। उससे मुझे बहुत आनंद मिलता है। God is touching the life. परमेश्वर आत्माओं को छू रहा है। God is changing the life. परमेश्वर लोगों को बदल रहा है। Last days I had an opportunity to meet a young man. पिछले हफ्ते में मेरे पास एक अवसर मिला कि मैं एक जवान व्यक्ति से मिलूं। And when I was talking to him, जब मैं उससे बात कर रहा था, he said one testimony.
उसने एक टेस्टिमनी बताया, गवाही He बताया। said that doctor said about my mother that within 72 hours my mother will be no more. और उसने बताया कि जो मेरी मम्मी है वो 72 घंटों के अंदर अंदर मर जाएगी, उसके बाद नहीं रहेगी। And then somebody told them to know Jesus and pray to Jesus, and God healed that lady, and now she lives for 14 years. She has been healed and she will living for Christ today. और अभी जब उन्होंने किसी ने उनको बताया कि यीशु के पास जाओ प्रार्थना करवाओ, तो उन्होंने गए और प्रार्थना किया। और वो जो स्त्री थी उनकी मम्मी, उस लड़के की, वो डॉक्टर ने बोला 72 घंटे तक बस ये जी पाएंगे, उसके बाद मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर की कृपा से वो आज 14 सालों से वो जीवित है और परमेश्वर की महिमा कर रही हैं। And whole family they are delightfully following Jesus. और बड़े आनंद के साथ पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा है। It's a season to see the miracles of God in the lives of God's people. ये एक सीजन है जो कि अवसर है कि हम परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने पाए। We are not healers. The healer is Jesus. Jesus heals the people. Jesus forgives the sins. हम कोई चंगा करने वाले नहीं है, हम कोई आजाद करने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारा जो चंगा करने वाला है, जो आजाद करने वाला है, जो छुड़ाने वाला है, वो है। Let us operate the gifts of God what the Lord has given to the church. और जो भी हमारे कलीसियाओं को जो वरदानों से भरा गया है, जो लोगों को वरदानों से भरा गया, होने दे कि वो सब प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए। My friends, you have been blessed by the Lord with the gift of the Holy Spirit. The Holy Spirit wants to use you. Holy Spirit want to demonstrate through you the power of His power on the मेरे प्रिय earth. भाई और बहनों, आप सब पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और प्रभु चाहता है कि उस पवित्र आत्मा के द्वारा आप इस्तेमाल किए जाएं और परमेश्वर के कार्यों को प्रकट करें। Don't limit yourself. Accelerate and go ahead. Move forward. Have desire more and more to do God for God. और मेरे प्रियो, आप घर में यूं ही ना बैठे रहें, लेकिन अपने इच्छा को जगाएं परमेश्वर के लिए, उसके लिए इच्छा जागृत करें और प्रभु के लिए आगे बढ़कर दिन पर दिन कार्य करने पाए। I would like to carry out the same message which I started last week. और आज सुबह काल में जो मैंने पिछले हफ्ते में जिस वचन को लिया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूँगा। That last week it was the first part, and today it will be going to the second part. और पिछले हफ्ते में संडे में जब मैंने पहला भाग में प्रचार किया था, आज मैं दूसरे भाग को प्रचार करूँगा। And we had gone through last week. It was Psalm 23. और हमने भजन 23 पढ़ा था। And in the Psalm 23 we were just learning the names of God. और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को इब्रानी भाषा में सीख रहे थे। And in that 23 Psalm is a very important Psalm. We are all of us very familiar in the beginning of our Christian life. We learn and we memorize that Psalm. जब हम विश्वास में आए थे तब हमने इस वचन को हमने सुना होगा, पढ़ा होगा और याद भी किया होगा। And that Psalm is the Psalm of experience or testimonial Psalm. और ये जो भजन है वो बहुत ही अनुभवी है और क्या कहते हैं, हमारा जीवन गवाही है। And that Psalm is the not only a word but is the lifelong journey with the Lord, expressed by David. और ये कोई एक सिर्फ भजन ही नहीं है, लेकिन ये दाऊद राजा का जो दिन प्रतिदिन की जीवन काल जो उसने बचपन से लेकर के और अपने अंत तक परमेश्वर का अनुग्रह देखा, उसके बारे में एक गवाही है। And in the first word we have seen the Lord is my shepherd. जब हमने पहले वचन में देखा था कि यहोवा मेरा चरवाहा है। And in the last week we have meditated the word Rohi, that means shepherd, and we said that Jesus is the good shepherd in the John chapter 10 says. और जिस प्रकार से हमने यूहन्ना में देखा था कि यीशु सच्चा चरवाहा है, तो हमने चरवाहा के ऊपर एक मनन किया था। And then I have given you a definition on a pastor and what is the pastor and how the pastor has to be carry out his ministry. और मैंने पासवान की एक परिभाषा को बताया था और किस प्रकार से उसको अपने कार्यों को आगे लेके चलना है। We as a pastor, we are being a pastor, but we have a great pastor who is our super pastor who leads us, and we are
moved by Him to do the work of God. और हम जिस प्रकार से पासवान है, लेकिन हमारे ऊपर एक और बड़ा पासवान है, वो हमारा यीशु मसीह है, जो हमें सामर्थ्य देता है और हमें आगे बढ़ने में अगुवाई करता है। The pastor's responsibility is the prayer and preach the gospel. और जो पासवान की एक जिम्मेदारी है कि प्रार्थना करे और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए। The pastor has to act like an ambassador of God. और पासवान जो है कि वो एक एम्बेसडर में राजदूत है। And that pastor seek and please God and serve people. और जो पासवान है वो परमेश्वर को प्रसन्न रखे और उनके लोगों की सेवा करे। And the pastor means teach the word, the people can grow spiritually and they also will be fit in the maturity of Christ. और उनका काम ये है कि लोग परमेश्वर में उसके कार्यों में बढ़ते जाएं और परिपक्व बनते जाएं। And it also says that obedient to operate the minister of God's power. और हमेशा परमेश्वर के अधीन में बने रहें और उसके कार्यों में बढ़ते जाएं। We have been given the power of God. We have to operate it through the ministry and the principle of God's word. हमें परमेश्वर की सामर्थ्य दी गई है कि हम उसको इस्तेमाल करें और परमेश्वर के कार्यों के लिए अपने आप को तत्पर बनाए रखें। And the last it says, remember the God's call and remain faithful to Him. और परमेश्वर की बुलाहट को हमेशा याद रखते हुए उसमें विश्वासियों के बने रहें। Dear friends, we have been called by God. Almighty God has selected and separated us for the work of God. Remain faithful and be faithful to His ministry. मेरे प्रियो, हम सब परमेश्वर के द्वारा जो बुलाए गए हैं उसकी बुलाहट को याद रखते हुए हम उसमें विश्वास योग्य बने रहें और उसमें कार्य करते रहें। And Yehovah Rohi, that means the Lord is my shepherd, and the shepherd is the one who leads the sheep, and it is the responsibility of a shepherd to provide for his sheep. So in your journey, in your Christian walk, you need not to worry for what and how things will come to you, but it is responsibility of Almighty God, Yehovah Rohi. He will walk with you and He will provide for you. He will be a perfect pastor for you. और यहोवा रोही मीन्स कि यहोवा मेरा चरवाहा मेरा उपलब्ध कराने वाला है, मुहैया कराने वाला है, और हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के कार्यों के लिए निकलते हैं वो हमारे लिए उपाय करता है, हमारे लिए प्रबंध करता है। And the second part we studied last week. और हमने दूसरी एक और that means the part 1 verse 1 verse 1a, if we study the Lord is a shepherd, and second part is Jehovah Jireh. और जब हमने भजन का पहला वचन पढ़ा था कि यहोवा मेरा चरवाहा, ये भाग एक का ए है, एक का फर्स्ट पार्ट और दूसरा जो भाग है उसी का एक का मुझे कुछ घटी नहीं होगी। That means Jehovah Jireh, कि यहोवा मेरा मुहैया कराने वाला। The Lord is my provider. यहोवा मेरा मतलब कि मुहैया कराने वाला, प्रबंध करने वाला। My dear friends, my dear people of God, let me assure you that we have a God who provides, who is the provider. He has in his kingdom or in his resources there is no limitations. मेरे प्रिय, परमेश्वर के राज्य में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं है। वो हमारा एक अच्छा मुहैया कराने वाला, प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। He shall provide you. रियली वास्तव में वो हमारे लिए उपाय करेगा। He will provide you for whatever you require for your spiritual life, whatever you require for your physical life. और ये वो हमारे लिए एक आत्मिकता में बढ़ने के लिए जो भी आवश्यकता है उसके लिए प्रबंध करेगा, और हमारे जो भौतिक आवश्यकता है उसके लिए भी हमारा प्रबंध करने वाला है। I would like to share with you one testimony. मैं आपके सामने एक छोटी सी गवाही प्रस्तुत करना चाहता हूँ। There was a man of God serving in Kerala. एक व्यक्ति था जो परमेश्वर की सेवा करता था, वो केरला में रहते थे। He has been serving the Lord for many years. वो बहुत ही लंबे समय तक परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। All of his church believers very financially very sound enough. और उनके जो भी चर्च के विश्वासी थे वो बहुत ही मतलब धनवान थे। And this pastor he was a humble man of God, but he did not have, he was staying in a rented building, but he didn't have proper house and nothing, but his church believers very strong. और वो जो पासवान थे, उनका जो घर वो किराए के घर में रहते थे, उनके पास कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन जो उनके विश्वासी लोग थे वो बहुत ही धनी लोग थे। One day the God spoke to one person of the church that you have to construct a house
और एक दिन परमेश्वर ने एक चर्च के विश्वासी से बोला कि आप एक घर बनाओ। And he called the pastor and he put the foundational stone. और उन्होंने पासवान को बुलाया और एक मतलब कि ईंट रख करके उसकी नींव डाली। And they prayed and the construction work started and the house was built so beautifully. और उन्होंने प्रार्थना किया और कार्य शुरू हो गया, घर बनना शुरू हो गया और वो घर बहुत ही सुंदर बनके तैयार हो गया। Approximately 1 crore rupees that person invested on building that house. और लगभग वो 1 करोड़ का घर था जो व्यक्ति ने जो बनाया था, इतना खर्च किया उसने। And then they called that same pastor to inaugurate the house. और जिस पासवान ने उस घर की नींव रखी थी, उसी पासवान को फिर से बुलाया कि इस घर का उद्घाटन करें। That means that their church pastor. इसका मतलब वही है कि कलीसिया के पासवान। And the pastor came. और पासवान आए। And he inaugurated the house. और उन्होंने घर का उद्घाटन किया। And that house, when they were inaugurating, जब वो घर का उद्घाटन हो रहा था, and that time the Spirit of the Lord spoke to that same person. और तभी परमेश्वर की आत्मा उस व्यक्ति से जिसने वो घर बनाया था उससे बोला, And you should hand over this house to this man of God. कि ये जो घर आपने बनाया है ये इस प्रभु के दास को दे दो। And then and there he hand over this key to that pastor. और उसी समय उस व्यक्ति ने पासवान को जो उसके हाथ में चाबी थी उसको हाथ में दे दी। When he gave the key to that pastor, और जब वो चाबी उस पासवान को दे रहे थे, and he said to the pastor, whatever best way I could construct this house, and the Lord helped me to do. If you feel anything reminded, it's your part. And this house I want to give you, and you must stay in this house today onwards. और उसी समय बोला कि ये घर मैं आपको देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि ये घर आपके लिए, और मैं बहुत ही कोशिश की हूँ कि ये घर को बहुत ही अच्छा बनाऊं, और जो भी अगर कुछ रह गया तो आप कर सकते हैं, और ये आज से आपका घर है। In this way, I just want to encourage the servants of God. You might be serving the Lord for many years, but you have nothing in your hand, nothing to worry, because God's plans are totally different. God has different way to provide the things for our lives. मेरे प्रियो, मैं सभी पासवान परमेश्वर के जनों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें निराश नहीं होना है, परमेश्वर में विश्वासी होकर बने रहे, क्योंकि परमेश्वर का उपाय बहुत ही अद्भुत है। वो किसी भी तरीके से आपके लिए उपाय करेगा। यहोवा जायरे, परमेश्वर हमारा उपाय करने वाला है। यहोवा जायरे, परमेश्वर हमारा उपाय करने वाला है। I would like to tell you another testimony. मैं एक और गवाही को बताना चाहूँगा। I have an Activa. मेरे पास एक एक्टिवा गाड़ी है। I have an Activa. One person did not see me and paid me 25,000 rupees without knowing me. और वो जो एक्टिवा के लिए मेरे पास एक्टिवा गाड़ी नहीं थी, तो उन्होंने मुझे 25,000 बिना देखे वो मुझे दिया है। How? Because I know that our God is the provider. Jehovah Jireh, and this morning I want to pray for you that the heaven may open for your blessing. Let the heaven be open for your provision. Let God in the kingdom of God there is no lacking. He shall be Jehovah Jireh for you, and today onwards you will see the experience, the power of God and provisions of God of your life. मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और यह आशीष की घोषणा करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके लिए अद्भुत उपाय करे। वो आपके लिए अपने स्वर्ग के द्वारों को खोलने जा रहा है, स्वर्ग के भंडार को खोलने जा रहा है, कि आपकी हर एक छोटी और बड़ी सारी आवश्यकता प्रभु यीशु के नाम से पूरी हो जा रहा, आप आशीषित पाए। हालेलुया, हालेलुया। And verse 2, Psalm 23 verse 2. भजन 23 का 2। He says, He leads me to lay down in the green pasture, and He leads me beside the quiet waters. वह मुझे हरे हरे चारागाहों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के सोतों के पास ले चलता है। This part also we discussed in the last week. ये भाग, ये भी वचन हमने पिछले हफ्ते में वो किया था। And here we found the Jehovah Shalom. यहाँ पर हमने देखा यहोवा शालोम, यहोवा शांति दाता। Judges chapter 6 verse 24. न्यायों की किताब 6:24. 6:24। Here in the life of Gideon, you understand that the Jehovah Shalom, here the picture has been given. He makes me lay down in the green pasture and leads me beside the quiet water. That means that He will be leading us. There will be a peace of God in our life. और परमेश्वर यहाँ पर जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से वह मुझे हरे हरे चारागाहों में बैठाता है, कि वो हमें एक सुखदायक जगहों पर ले चलता है। You
and I need a comfort journey. हम सब चाहते हैं कि एक आरामदायक यात्रा, This world has no peace. और लेकिन इस संसार में कुछ भी शांति नहीं है। Whatever you see, this is not temporary peace you may find, but we have not have a permanent peace in this world. हो सकता है कि जो भी हमें अभी है वो हमारी एक साधारणता, मतलब कि कुछ ही समय का एक शांति है, लेकिन But in the presence of God, there is a fullness of joy, and you will find the eternal peace in your heart and mind. लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में हमें संपूर्ण आनंद और सुखदायक शांति है। When you give your life to God, you cannot express such kind of peace you carry in your heart and mind. जब हम परमेश्वर का वचन अपने जीवन में रखते हैं तो वो परमेश्वर की जो आशीष और उसका शक्ति आपके अंदर ऐसे असीम तरीके से बच जाता है, you cannot find that peace somewhere anywhere else. That is only can fill with the presence of God. जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं और जिस शांति से हम असीम शांति से भर जाते हैं, वो हम संसार के किसी भी चीजों में नहीं पा सकते। And now today I start with the third part. आज मैं तीसरी बात को, That means I want to start the second part. मैं दूसरे भाग को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। Verse 3 says, He restores my soul. वह मेरे जी में जी ले आता है। He restores my soul. वह मेरे जी में जी ले आता है। And that word I want to bring, that called El Rohi, one who gives. एल रोही मतलब कि जो हमें देता है, One who gives. जो हमारा उपाय करता है, He restores. और जो हमें संभालता है। Whatever has been snatched, whatever has been missed, whatever has been lost from you, that becomes El Rohi, one who gives. He shall restore things for you back. जो आपसे छीना गया है, जो आपसे अलग किया गया है, वो परमेश्वर एल रोही, वो हमें वापस देने वाला परमेश्वर है। Whatever I do not know, what things has gone away from you, what are the things has lost from you, but let me tell you, this morning we have a God, El Rohi, who can give things back to us. मुझे नहीं पता है मेरे प्रियो कि आपने क्या खोया है, क्या आपके जीवन से मतलब कि लुप्त हो चुका है, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर महान है, वो हमें देने वाला एल रोही है, जो हमें देता है। Verse 3 says, He restores my soul. और तीसरा वचन इस प्रकार कहता है कि वह मेरे जी में जी ले आता है। The restorations part is the part of God. और जो रिस्टोरेशन है मतलब कि हमारा दोबारा से चीजों को बनाने के लिए। See, man, God created very, very powerful and very beautiful humankind in His own image and likeness. Because of sin, the relationship has been broken, but the God restored the relationship through His Son Jesus Christ. मेरे प्रियो, जो इस मनुष्य की सृष्टि हुई वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया, लेकिन उसके पापों के कारण उसने अपने संबंध को तोड़ दिया परमेश्वर के सामने। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जगत में और उसने दोबारा से हमें एक संबंध स्थापित किया हमारे साथ। When the relationship has been broken, जब हमारा संबंध परमेश्वर से टूट चुका था पापों के कारण, when the relationship जब हमारा परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा नहीं था, we are totally discouraged, we have been gone, our relationship has been broken, we feel that took no use of my life, there is no purpose in life, but God wants to restore. In the restoration is the through Jesus His Son. और जब हमारा परमेश्वर के साथ में हमने जो पाप किया उसके कारण हम परमेश्वर से अलग हो चुके थे, हमारा संबंध टूट चुका था, हमने अपने जीवन में सारी आशाओं को खो दिया था, उस समय परमेश्वर यीशु मसीह आए और उन्होंने हमें दोबारा से सहभागिता दी। Another word, और दूसरी बात को मैं बताना चाहूँगा, restoration means restart, दोबारा से शुरुआत। or our God is the God of second chance. और हमारा परमेश्वर वो है जो हमें दूसरा एक मौका देता है। Many of you started well, but you missed your journey with Christ. और सब हम में से कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से शुरुआत किया, लेकिन उन्होंने अपने मतलब कि थोड़ा सा सामंजस्य में पड़ गए और उन्होंने अपने केंद्र बिंदु को उससे भटक गए। Many of you
had a great excitement to walk with God, but because of some reason you have missed out and you are feeling so guilty of your life. Why this happened to me? Why I have done this way? But let me assure you, let me encourage you, my brothers and sisters, the God want to give you again the chance. He want to restore your things back to you. Here he says in verse 3, he restores my soul. और यहाँ पर हम जो तीसरे वचन में देखते हैं कि शायद आपने कुछ शुरू किया है लेकिन वहाँ तक नहीं कर पा रहे हैं जैसा करना चाहिए, किसी भी कारण से आप भटक गए परमेश्वर की राहों से। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि आप अपने आप को पुनर्स्थापित करें और परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं और उसके कार्यों को संपन्न करें। See, one thing is very painful for human beings. और एक चीज है जो कि मनुष्य के लिए बहुत ही दुखदाई है। If somebody get hurt, लेकिन यदि एक कोई व्यक्ति बहुत ही मतलब कि ठेस लग जाए, if one person get a hurt, अगर एक व्यक्ति को ठेस लग जाए, it doesn't matter how many good things come to him, he holds only one thing and destroys his life. और चाहे कितनी भी अच्छाई उनके सामने हम प्रकट करें, लेकिन वो एक चीज जो उसके जो ठेस लगी हुई है उसको ले करके वो शायद पूरे जीवन को अपने नाश कर दें। For an example, मैं एक उदाहरण को देना चाहूँगा। somebody gave life to God, किसी ने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है, and because of somebody, I know in a Christendom not everybody is not the same. और मैं जानता हूँ कि मसीहत में सब एक जैसे नहीं है। Sometimes the people become a stumbling block for others to grow in Christ. और कुछ लोग तो ऐसे भी हो जाते हैं कि हमारे लिए रोड़ा बन जाते हैं कि हम प्रभु में बढ़ने के न बढ़े। And some people becomes make the people insult the people, negative things come to their life. और कई बार तो ऐसा है कि वो लोग इंसल्ट करते हैं और उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। But let me tell you, मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ, one person has done something, एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा कुछ किया, but still there are many people came to you to build you. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आए जो कि आपको स्थापित करना चाहते हैं, But you could not give heed to their ears. Those who wanted to grow you or those who wanted to restore you, but only because of that one person you have destroyed your relationship. But in this morning I would like to encourage you, remove your negativity, remove all the things which is not according to God's plan and God's desire, and hold on what God wants to do with you in your life. मेरे प्रियो, एक मतलब कि आपके जीवन में किसी ने हर्ट किया है तो उसको एक बात को पकड़ के नहीं, हजारों लोग आपके जीवन में आए जो कि आपको दोबारा से बनाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, उस नकारात्मक बातों को लेकर के ना रहें तक, और बल्कि अपने जीवन को फिर से स्थापित करें और परमेश्वर के साथ में एक घनिष्ठ संबंध बनाएं और आशीषों को प्राप्त करते जाएं। God's interested to restore your life. परमेश्वर चाहता है कि हम पुनर्स्थापित हो जाएं। God is interested to rebuild your life. परमेश्वर चाहता है कि आपको पुनर्स्थापित करना चाहता है वो। The history when we read in the Luke chapter 15. एक कहानी जब लूक का रचित सुसमाचार की किताब, Lost sons, the prodigal sons. कि एक जो परमेश्वर उसका उड़ाऊ पुत्र के बारे में, when this prodigal son go away from his father, but when he realized himself, when he comes his own conscious, he says that my father's house having servant, then I should return back to him. And when he comes, the father is waiting for him to have the greater relationship with him. और जब वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से संबंध तोड़ करके दूर देश में चला गया, लेकिन जब वो अपने विवेक में आया तब उसने वास्तव एहसास किया कि मेरे पिता का प्रेम कितना महान प्रेम था। वो वापस आया और उसको निहारते हुए पिता उसको देखता रहा, और जब वो आया उसके अंदर बहुत ही आनंद हुआ। Today also God is waiting for you to have the restart, have your relationship again back to Him. El Rohi, one who gives.
मेरे प्रियो, आज वो परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है कि आप वापस आ जाएं। यदि आप किसी भी कारण से परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ पुनः अपना संबंध स्थापित करना चाहता है, वो पुनः प्रेम करना चाहता है और आशीष देना चाहता है। And next, second part is that He leads me in the path of righteousness for His name's sake. वो धार्मिकता के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। We have studied the Yehovah Rohi. हमने यहोवा रोही के बारे में पढ़ा। We studied Yehovah Jireh. और अब यहोवा हमारा उपाय करने वाला है। Then we studied Yehovah Shalom. परमेश्वर हमें शांति देने वाला है। And now we just look after the El Rohi, one who gives, and now we will study the one He leads me in the path of righteousness for His name's sake. That is called Yehovah Siddiqenu. और यहोवा एल रोही जो हमारे लिए उपाय करने हमें देने वाला है, पुनर्स्थापित करने वाला है। और अब हम आगे पढ़ेंगे यहोवा सिद्दीकुनु। That means the Lord is our righteousness. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमारी धार्मिकता है। Did you understand this word, the righteousness? क्या आप समझते हैं ये धार्मिकता का मतलब क्या है? The Lord is our righteousness. कि परमेश्वर हमारी धार्मिकता है। God is not interested in your sinful life, but He is interested to impart you His righteousness upon your life. परमेश्वर आपके इस पापी में जीवन के साथ रुचि नहीं रखता है, लेकिन वो चाहता है कि आप उसके धार्मिकता को पहन लो और उसको स्वीकार करो। Jesus becomes our righteousness. परमेश्वर हमारी धार्मिकता बन जाए। When you walk, you will not walk like yourself, but you will walk with the righteousness of God, and all the guilt and all the filthy things will be removed from your life, and you will live a life of satisfaction. मेरे प्रियो, हमारे जीवन से सारी गलत बातें, सारी बुराइयां हटा करके परमेश्वर की धार्मिकता को पहन ले, तब जब हम चले तो परमेश्वर की धार्मिकता हमसे झलके। This word called the righteousness is like a wooden piece coated with the silver. और इसका राइचस का मतलब इस तरीके से मतलब कि है कि जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा है और उसको चांदी के परत से उसको किया गया है। Inside there is a wooden piece or the wood of the stick. उसके अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा है। But those who look around from outside, they see only the coated silver. और जो लोग देखें तो ऐसा दिखता है जैसे कि उसके ऊपर से चारों तरफ से चांदी की परत डाली गई है। Then nobody know. After the covering, nobody will identify inside there is a wooden piece. The people will only identify the silver outside, which is coated on the stick. मेरे प्रियो, कोई भी अंदर का लकड़ी उसके अंदर है ये क्या है, लेकिन वो आपका ऊपरी पहनाव जो कि उसमें चांदी से जो ढका हुआ है उसको देखेंगे। In the same way, dear friends, today onwards, when the life is given to Jesus, you will be not known by your own identification, but your identification, your name, your character will be changed, because the blood of Jesus will be overwrap on you, and the glory of God will overwrap on you. The righteousness of God will the best upon your life. मेरे प्रियो, आप अपने आप को नहीं पहचाने जाओगे कि आप कौन हैं, क्या है, लेकिन जो आपके ऊपर से जो परमेश्वर की महिमा झलक रही है, जो परमेश्वर के कार्य प्रकट होंगे वो झलकेंगे, उससे आप परमेश्वर के नाम से पहचाने जाओगे। That's what John chapter 1 verse 12 says. इसीलिए यूहन्ना 1:12 says, all those who receive Jesus, they are called to be sons or children of God. और जो भी परमेश्वर को पुकारते, जो भी बुलाए गए हैं और उनको परमेश्वर को स्वीकार करते, वो परमेश्वर की संतान कहलाए। Or another word is in the Romans chapter 8 verse 14 says, those who led by the Holy Spirit, they are called the children of God. और रोमियो की किताब में इस तरीके से लिखा कि जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। You are not yourself. You have been covered with the righteousness of God. God has set His blood upon your life, and you are no more yours.
you belong to display the righteousness of God upon the in the world. मेरे प्रियो, आप अपने आप में नहीं है, अपने आप से नहीं है कुछ, लेकिन परमेश्वर ने आपको बुलाया है और पवित्र लहू से आपको शुद्ध किया है कि आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से प्रकट करें। My friends, मेरे प्रियो मित्रों, do you understand? क्या आप समझते हैं? The way the world sees you, you are different in the eyes of God. जिस प्रकार से आपको संसार देखता है, उस संसार की नजरों से आप बहुत अलग हैं। The world looks at your structures. जो संसार है वो आपके स्ट्रक्चर को देखता है। They look at your education. वो आपकी शिक्षा को देखता है। They looked at your family background. वो आपके पारिवारिक पारिवारिक चीजों को देखता है। But God looks you in different way. लेकिन परमेश्वर आपको एक अलग नजरिए से देखता है। Because God restores in His Son with you a fellowship, and you become a new being, and God wants to bless you with His righteousness. क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, वो उसने पुनर्स्थापित किया है, उसने शुद्ध किया है कि आप उसके धर्मी जन और उसकी संतान कहलाएं। Verse 4. चौथा वचन। Verse 4. चौथा वचन। Yeah, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं, फिर भी हानि से न डरूंगा। Words is very very powerful. वह वचन बहुत ही सामर्थी है। It says even or though I, that means it is the possibility that our walk may go in the shadow of death. और यहाँ पर एक है कि हमारा जीवन है जो वास्तव कभी ऐसा होता है, ये सच्चाई है कि हमें कभी कभी दुख की तराइयों से होकर के जाना पड़ता है। Dear friends, Christian life is not immune to the problems. जो मसीह जीवन है वो परेशानियों से अलग नहीं है। वो परेशानियों से अलग नहीं है। We all go through the problems. हम सब परिस्थितियों से परेशानियों से होकर गुजरते हैं। If somebody preaches to you that there is Christian life, there will be no problem, no sickness, no difficulties, they preach wrong. और यदि कोई ऐसा प्रचार करता है कि हमारे जीवन में संकट नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, बीमारी नहीं आएंगे, तो इसका मतलब वो गलत प्रचार कर रहा है। It is true, we live in the world, things happen to us what we don't expect, but Bible tells in the Psalm 91. और जिस पर हम इस संसार में रहते हैं, ये वास्तव में है कि हम इस संसार में रहते हैं, तो ये सब चीजें एक आम है हमारे जीवन के लिए। लेकिन भजन 91 में इस प्रकार कहता है, 91 verse it says, though I let me clear with you this. I will have many problems. Let me see here. Yeah, verse 11. 11, right? 10. Verse 10. It says, 91 verse 10 says, no harm will come to you, no plague will come to near to your tent. इसलिए ना कोई विपत्ति तुझ पर आएगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आने पाएगा। And verse धर्मी पर बहुत सारी विपत्ति आती है। धर्मी पर बहुत सारी विपत्ति आती है, लेकिन यहोवा से छुड़ा लेता है। Praise the Lord, we praise you. Just excuse me, I just reput 34. Let's take 34. Psalm 34. Before I got wrong, but I want to be corrected myself, and then let's go to Psalm 34 and verses 19. 19 verse 19. 19 हाँ, Yeah. धर्मी पर
धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से छुड़ाता है। In 91 we read that he rescues, no sickness, no plague will come near to your tent, that the promise. But here 34:19 says धर्मी पर it says many adversaries come to one who is righteous, but the Lord delivers him from all of them. धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से छुड़ाता है। It is fact, my friends, that as long as you are on the earth, as long as you are in this flesh, you will have challenges, you will have sicknesses, you will have a lot of difficulties. But Bible tells that righteous will have many adversities, but God will deliver him from all of them. मेरे प्रियो, जब तक हम इस संसार में हमारे ऊपर बहुत सारी विपत्तियां आएंगी, बहुत सारी समस्या आएंगी, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमें सारी विपत्तियों से छुड़ाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें छुड़ाएगा। If you are going through challenges, if you are going through any sickness, or God is capable to deliver you from out of it, but if you follow him only for that, that's the wrong concept to follow him. मेरे प्रियो, हमारे जीवन में समस्या और संकट है, वो परमेश्वर का वायदा है, वो हमें छुड़ाएगा। और लेकिन अगर वो सोचते हैं कि नहीं हमारे जीवन में कोई विपत्ति नहीं आएगी, तो उसका गलत मतलब है। That means here the Psalmist 23 verse 4 says, though I walk through the valley of death, shadow of death, I will fear no evil. यहाँ पर जिस प्रकार से भजनकार कहता है, चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं, फिर भी मैं हानि से न डरूंगा। The shadow of death means that there is no light. If there is supposed to be light in things, but there is no light, it seems totally dark. But still, that I will fear no evil. शैडो का मतलब ये क्या है कि अंधकार, चारों तरफ से अंधकार, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है आगे, लेकिन मेरे प्रिय और यहाँ मतलब कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। Why? क्यों? For you are with me. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। For you are with me. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। And that word I have taken in Hebrew, that is Elohim. और इब्रानी भाषा में एलोआम है। And that means everlasting God. इसका मतलब है अनंत काल का परमेश्वर। Book of Isaiah chapter 40 verse 28. यशायाह की 40 से 28 में इस प्रकार से है। That verse when we read Book of Isaiah chapter 40 verse 28. जब हम ये वचन को पढ़ेंगे 40 का 28। Do you not know? Have you not heard? Yahweh is everlasting God, the creator of all earth. He will never grow faint or weary. क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा सनातन परमेश्वर और समस्त पृथ्वी का सृष्टि करता है। Dear friends, though you may walk through the valleys, you may see the everywhere shadows, you may see everywhere darkness, but one thing let me tell you that matters, the Lord is with you, the Elohim, that is everlasting God who always with you. मेरे प्रियो, हो सकता है आप बहुत ही समस्याओं से गुजर रहे होंगे और समस्याओं से गुजर रहे होंगे, लेकिन मेरे प्रियो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर आपके साथ है। अनंत काल का परमेश्वर आपके साथ हमेशा सर्वदा बना रहेगा। You know, Daniel and his friends were in a fire. और जब दानियल और उसके जो मित्र थे वो लोग आग में थे, and they see the 3 people, but the 4th man walk in that fire. और जब वहाँ देखते हैं कि वो 3 लोग थे, लेकिन जब चौथे व्यक्ति को वहाँ पर चलते हुए देखते हैं, that means in the death they were with the death face to face, but there is the God who came in the midst of them. जब वहाँ देखते हैं कि वो अपने जीवन को मतलब मृत्यु को लेने जा रहे थे, स्वीकार करने जा रहे थे, लेकिन उस समय ऐसे मृत्यु के घोर अंधकार में भी परमेश्वर उनके साथ साथ चल रहा था। You will not go alone. God will walk with you in the tough time of your life. मेरे प्रियो, आप पर अपने कठिन समयों पर, समस्याओं के समय पर आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा। And it says, next part says, your rod and your staff, they comfort me. और जो उसका दूसरा भाग है कि तेरी छड़ी और तेरी लाठी मुझे शांति, तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। Your rod and your staff, they
छड़ी और तेरी लाठी मुझे Jehovah, शांति मिलती है। Hosea. उसका मतलब है इब्रानी भाषा में यहोवा होसिया। That means the Lord who saves. उसका मतलब ये है कि परमेश्वर जो हमें बचाता है। There is a comfort, there is a rod and staff, they comfort me. That means it becomes Jehovah Hosea. That means the Lord who saves. Psalm 20 verse 9, the same word has been quoted. ये वचन जो है तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, इसका मतलब यह इब्रानी भाषा में है यहोवा होसिया कि परमेश्वर हमें बचाता है, संभालता है। When he disciplines you, not to kill you or not to distract you, he wants to build you. That's what the psalmist says, your rod and your staff comfort me. मेरे प्रियो, जब हम समस्या और मुश्किलों से चलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें नाश करना चाहता है, लेकिन वो हमें संभालना चाहता है, बचाना चाहता है और सही राह पर लेके आना चाहता है। और परमेश्वर, इसका मतलब यही है कि उसका जो लाठी और छड़ी है वो हमें शांति देती है। If your life is in the process of discipline, please do not take it lightly or think that God is building you for your best things for your life. मेरे प्रियो, अगर कई बार हमारा जीवन जो अव्यवस्थित हो जाता है, लेकिन उसको हमें यूं ही ऐसे नहीं सोचना है कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें एक व्यवस्था में लेके आना चाहता है। There are three things happens when this shepherd use staff and rod. और जब ये जो चरवाहे हैं, जब ये छड़ी और लाठी जब इस्तेमाल करते हैं, उसका तीन उनका कार्य है। One, it is to provide. पहला है कि उनको प्रबंध करना। When they go in the jungle, the green the branches will be high, so they will stick this rod and bring that things down and give to the sheep. और जब वो जंगल में जाते हैं अपनी भेड़ों को चराने के लिए, तो उसी छड़ी से वो क्या करते हैं कि जो हरी हरी पत्तियां होती हैं उनको नीचे झुका के और अपने भेड़ों को खिलाते हैं। And second, और दूसरा काम, to protect, उनको संभालना। When the wild animal comes, this same stick is used to protect them from the wild animals. और वही जो कोई जंगली जानवर उनको खाने के लिए आता है भेड़ों को, तो उसी छड़ी से वो जंगली जानवरों को मारने का काम करता है। And third, और तीसरी बात, the third is to protect, guide. और तीसरी बात है कि वो गाइड करता, मतलब अगुवाई करता है। This is three important things happen. और ये तीन महत्वपूर्ण बातें उस छड़ी से होती हैं। This in the new, as we hold, this is our stuff in these days. और आज हम देखें तो ये जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे लिए एक लाठी है। This word of God is to transform or correct the people. और ये जो परमेश्वर का वचन है वो मनुष्य को बदलने के लिए और उसको सही करने के लिए वचन है। This word of God is or provide the spiritual food. और यही परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक भोजन का उपलब्ध कराने वाला है। This word of God only prevents us from the false doctrines. और यही परमेश्वर का वचन हमें गलत विचारों से बचाता है। This same word of God corrects us from all our mistakes. और यही परमेश्वर का वचन हमें सारी गलतियों से हमें सुधार के लेके आता है। Nobody is perfect, but we are every day need to learn to become a perfect. कोई भी हम सब परिपूर्ण नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन ऐसा है जो कि जिससे हम अपने आप को हर दिन प्रतिदिन परिपूर्ण बना सकते हैं। We have to become more like Jesus in a day, every day. और हम हर प्रतिदिन जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर के स्वरूप में अपने आप को बना सकते हैं। Dear friends, मेरे प्रियो, this word of God is to provide comfort and protect. ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए उपलब्ध कराता है और हमें सुरक्षित रखता है। So it is the Lord who saves. इसका मतलब कि परमेश्वर वो हमें जो बचाता है। Verse 5. 5वां वचन, You prepare a table before me in the presence of my enemies. तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज लगाता है। It here Jehovah Gibor Melchama. इसका इब्रानी भाषा में लिखा है कि यहोवा मिल्कामा, गिब्रोर मिल्कामा। Melchama, that is the God is mighty in battle. कि परमेश्वर युद्ध में सामर्थी है। Yeah, God
God पराक्रमी है. The Lord पराक्रमी is है. good, mighty in a battle. परमेश्वर युद्ध में पराक्रमी है. My friends, many of time you might have seen that your enemies has prepared a table to destroy or to destruct you, but then the God becomes your portion and He protects you. और कई बार हमारे जो शत्रु होते हैं वो हमारे लिए ऐसी व्यवस्था, ऐसी योजनाएं बनाते हैं कि वो हमें नाश करे, लेकिन हमारा परमेश्वर, वो जो महान सामर्थ्य परमेश्वर है, वो हमें संभालता है. Battle belongs to God. ये जो युद्ध है वो परमेश्वर का है. Bible tells the horses are in vain, they cannot save with their might, but the God saves the people. रथ और घोड़ों के द्वारा हमें नहीं बचाया जा सकता है, लेकिन परमेश्वर ही हमें सुरक्षित रखता है. The battle belongs to God. क्योंकि युद्ध परमेश्वर का Christian है. life is the life of a battle. We live in this world as fighting battle, but our battles are not with the things of this world, but our battle is the spiritual battle. We have a day-to-day battle with the demonic powers. मेरे प्रियो, हमें इस संसार में जब हम रहते हैं कि हमारा ये युद्ध वो नहीं है कि जो हम किसी चीजों के लिए उसके लिए परेशान हो जूझे, लेकिन हमारा वो युद्ध वो है कि हम आत्मिकता में बढ़ते जाएं और परमेश्वर के संग बने रहें. You are in a battle. हम सब युद्ध में हैं. But one thing let me tell you. मैं एक बात को बताना चाहता हूँ. Your battle is not yours. Your battle belongs to God, and God is in victory side. और मेरे प्रियो, आपका जो हम लोग समस्याओं में हैं, संकट में है, लेकिन ये समस्याएं संकट आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है. और मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर आपको विजय बनाएगा. Your battle has been won on the cross of Calvary through Jesus, His Son. और परमेश्वर यीशु मसीह जो उस कलवरी क्रूस पर जो चढ़ गया है, उसने विजय प्राप्त की है उस मृत्यु काल से, तो वो परमेश्वर उसने जीत लिया है आपके सारी बातों को. He is the mighty in the battle. वो महान सामर्थी परमेश्वर है इस युद्ध में. And He says, "You anoint my head with oil." और यहाँ पर कहता है कि तू मेरे सिर को तेल से उड़ेला है. My cup runs over. My cup runs over. मेरा प्याला उमड़ रहा है. You anoint my head with oil. तूने मेरे सिर पर तेल उंडेला है. And my cup runs over. मेरा प्याला उमड़ रहा है. That means इसका मतलब you are anointed with the favor of God, and you are the portion of blessings. आप लोग परमेश्वर की सामर्थ्य से परमेश्वर के तेल से अपॉइंट किए गए हैं. The oil means also called a strength. That is the Jehovah Uzi. और जो तेल का मतलब ये है इब्रानी भाषा में यहोवा उजी. That means God becomes Jehovah Uzi. That means my strength. और जो तेल है वो एक मेरी सामर्थ, मेरी ताकत को बताता है. In above verse or above part you see that you are facing your enemies, but down part here says you become my strength. और जब हम ऊपर में देख रहे थे कि वो मेरी ताकत है, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहोवा उजी. That means my strength. मेरी ताकत. Upside you were facing your enemies, you had a battle, but here you are not winning your battle by yourself, but God becomes your strength, and through His strength you are able to do extraordinary things. और अभी हम लोग ऊपर जब देख रहे थे कि वो हमारी सामर्थ, हमारी ताकत है, लेकिन यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारी ताकत बन रहा है और वो सामर्थ बन रहा है कि हम उसमें विजयी हो जाएं और वो उस युद्धों को जीतने पाए. Your battle will be not won by the physical temporary weapons, but sometimes the ordinary things can make your weapon or make you become a instrument to win your battles. कई बार हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की नहीं, लेकिन हम एक साधारण सी चीज़ों में भी साधारण चीज़ों से भी हम परमेश्वर के कार्यों को परमेश्वर के से जो हम इस युद्ध में हैं उसको हम जीत सकते हैं. Only things God should be in your part, in your side. लेकिन बस मतलब ये है कि परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए. And here says, you anoint my head with oil, my cup runs over. It means Jehovah becomes Jehovah Uzi, my strength.
इसका मतलब ये यहाँ पर जब देखते हैं कि तूने मेरे सिर पर तिल उंडेला है, मेरा प्याला उमड़ रहा है, परमेश्वर मेरी ताकत बन गया है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। How many things we learned? हमने कितनी बातों को यहाँ पर सीखा? We learned Jehovah Rohi, हमने यहाँ पर देखा यहोवा रोही, Jehovah Jireh, यहोवा जायरे, Jehovah Shalom. यहोवा शालोम, Then we have seen Elam, Jehovah Elam. यहोवा एलोम, And then we see Jehovah Hoshene. यहोवा होशने, Then we have seen Jehovah Gibber Maha. यहोवा गिब्रोन मलकहा, And then we see Jehovah, God is my strength. यहोवा यूसी। And verse 6 says, छठवां वचन इस प्रकार कहता है, surely the goodness and mercy shall follow me all the days of my life. निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। Last part, David said, surely the goodness and the mercy shall follow me all the days of my life. जब यहाँ पर दाऊद राजा भजन में इस प्रकार कहते हैं कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेंगे। And here I want to use name Jehovah Nissi. यहाँ पर मैं एक नाम को बताना चाहता हूँ इब्रानी भाषा में कि यहोवा निस्सी। The Lord is our banner. ये परमेश्वर हमारा झंडा है, जय का झंडा है। जय का झंडा है। The Lord is our banner. ये परमेश्वर हमारा जय का झंडा है। Dear friends, मेरे प्रियो, in your life the goodness and mercies will be follow all the days, and you should carry the name of the Lord, the banner of the Lord in your whole life. मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया हमेशा हमारे संग बनी रहेगी और हम उस विजय के झंडे को लेकर घूमेंगे। The banner is always the symbol of victory. और जो बैनर है वो जो विजय का झंडा, वो विजय का झंडा को दर्शाता है। You are more than conqueror. आप एक जीतने वाले से बढ़कर हैं। You have been separated. The victory belongs to you because Jesus has won the victory on the cross. आप अलग किए गए हैं कि आपको विजय प्राप्त हो और आप विजय के लिए अलग किए गए हैं। Surely the goodness and mercy shall follow all the days of life. The Lord will become Jehovah Nissi. The Lord is our banner. और यहाँ पर जब देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा निस्सी हमारा जो जय का झंडा है और उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी भलाई हमारे जीवन भर बनी रहेगी हमारे ऊपर। And verse next part says, I will dwell in the house of Lord forever. और जब आखिरी में हम देखते हैं उसके 6 के आखिरी वचन, आखिरी भाग में, और मैं यहोवा के घर में सर्वदा वास करूंगा। I will dwell in the house of the Lord forever. मैं परमेश्वर के घर में सर्वदा वास करूंगा। And that word I use here, Jehovah Shammah. यहाँ पर मैं इसे एक इब्रानी भाषा का शब्द बताना चाहता हूँ, यहोवा शम्मा। The Lord is here. परमेश्वर यहाँ पर है। Dear friends, मेरे प्रियो, dear friends, मेरे प्रियो, I will dwell in the house of the Lord forever. That means Jehovah Shammah. My friends, wherever the presence of God is there, you shall live with Him. That matters, Lord, because the Lord is here. He is here for today. He will be tomorrow with you. He will be forever with you. That is, Lord is Jehovah Shammah. मेरे प्रियो, आप जहाँ कहीं भी रहें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, परमेश्वर को खोजते रहें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ और उसके भवन में बने रहें और उसमें बढ़ते जाएं। He will not leave you. वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं। Your destiny will be decided. Your destiny has been fixed forever. Why? Because He is Jehovah Shammah. The Lord is here. मेरे प्रियो, आपका जो भी मतलब कि आपने अपने जीवन में सोचा है कि करने के लिए वो पूरा होगा परमेश्वर में, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। Hallelujah. 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 There's one song, Yehovah Charwaha Mera Bin. Sing that song and we'll finish with this meeting today. Yehovah Charwaha Mera, कोई घाटी मुझे नहीं है, हरे चरायों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरे चरायों में मुझे स्नेह से चराता वो है।
निदान, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, स्नेह से चराता वो है। आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं आज इस शाम काल के लिए, विशेषकर प्रभु इस दोपहर काल में हम आपके चरणों में आ पाए। प्रभु, जब हमारी शाम हमारे सामने में खड़ी है, मैं आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, आपके आशीषों के धन्यवाद करते हैं, आपकी हर एक उपकारों के धन्यवाद करते हैं। इस भजन के लिए प्रभु, जो आपने प्रभु जी अद्भुत रीति से हमें समझाया कि आप हमारे लिए क्या हैं, आप हमारे धार्मिकता हैं, आप हमारे प्रभु जी, हमारे प्रभु छुटकारा देने वाले हैं, आप हमारे परमेश्वर, हमारे विजय का झंडा है परमेश्वर। ओ परमेश्वर, आप मौजूद हैं प्रभु, जब आप मौजूद हैं सब कुछ बदल जाता है। धन्यवाद करते प्रभु, आज इस दोपहर काल में तेरे वचन को सुनने और सुनाने के लिए प्रभु आपने हमें आशीष किया, उसका धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने भी लोग तेरे वचन को सुने हैं उनके हृदय में प्रभु जी एक असीम प्रभु जी आशीष होने पाए। यदि कोई बीमार है, इस समय में मैं आपकी चंगाई की घोषणा करता हूँ, उनके सिर से लेकर पैर तक एक बड़ा स्पर्श होने पाए। पवित्र आत्मा आप छू लेना परमेश्वर, उनके पाप और श्राप को हटा दे, आप आश्रित हो जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता प्रभु, ऐसा कोई व्यक्ति है प्रभु जो अभी तक अपने जीवन को दिया नहीं है, सालों से इंतजार करता है, सालों से वेट करता है, आज का दिन उसका जीवन का दिन ऐसा दिन हो जाए प्रभु जो आपको देने वाला हो जाए, उसके मन कठोर हृदय को बदल दे प्रभु। और महान परमेश्वर, एक संत बनकर, आपका बेटा और बेटी बनकर जीने के लिए तू सहायता मदद कर। धन्यवाद करते हैं, आपने अद्भुत कार्य किए, आपने बीमारों को छुआ, आपने प्रभु जी अद्भुत कार्य किए, उसका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम पर कल को पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, जीसस लव्स यू, लॉर्ड वी प्रेज यू, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, thank you Lord, 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 thank you Lord.